ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਈਜ਼ੀ ਸਟੱਡੀ ਟ੍ਰੈਂਡਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਈਜ਼ੀ ਸਟੱਡੀ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੈਂਡਸ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਮੈਥਸ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰੀ ਬੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ, ਚੈਪਟਰ ਫਸਟ ਹੈ, ਡੇ ਵੀ ਫਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਪਲੱਸ MCQ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੈਟਸ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾय ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ, ਫॉर एग्जांपल ABC ਕੈਪੀਟਲ ਜੋ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਮੀਨਸ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵੋਵਲਸ ਦਾ ਸੈੱਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੋਵਲਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू A E I O U। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੋਵਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਵੋਵਲਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਫॉर एग्जांपल क्वेश्चन तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, what of the following collection is a set। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਸੈੱਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ the collection of all girls in your class। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ the collection of intelligent girls in your class। C है the collection of beautiful girls in your class। फोर्थ वन है the collection of tall girls in your class। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ B ਆਪਸ਼ਨ। B ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, C ਹੋਏਗਾ the collection of beautiful girls in your class। नहीं होएगा ए भी the collection of tall girls in your class। ये भी नहीं होएगा। तो अपना की सही राइट आंसर होएगा the collection of all girls in your class। हुण अपनी ए ली ऑप्शन ठीक क्यों हुई? क्योंकि हुण अपने को एक क्लास दी हुई है। तो जो उन्होंने कह दिता the collection of all girls, इन्हें मतलब आप एक सैट बना सकते हाँ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੈੱਟ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗਰਲਸ ਇਨ ਯੂਅਰ ਕਲਾਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, क्योंकि जरूरी नहीं इंटैलीजेंट गर्ल वही होएगी जो पढ़ाई जिसनों ज़्यादा आती होएगी।
ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗਰਲਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਗਰਲਸ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਲ ਗਰਲਸ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ए ऑप्शन। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ मूव ਕਰਦੇ ਹਾਂ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। दो प्रकार दियां सैट्स दियां रिप्रेजेंटेशन कर सकने आपां। फस्ट है अपने कोल रोस्टर फॉर्म। तो हुण दसीए रोस्टर फॉर्म, तुसी दसो रोस्टर फॉर्म अपनी की होएगी। तो रोस्टर फॉर्म होएगी अपने जिस विच आपां सैट दे जो एलीमेंट होणगे उन्हां नूं कोमास विच डिनोट करांगे। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू AEIOU। तो ये की हो गया, इन्हां विच इस विच रोस्टर फॉर्म विच आपां की कीता, एलीमेंट्स नूं कोमास विच लगा दिता, कोमास करली ब्रैकेट विच लिख दिता। ये अपनी है रोस्टर फॉर्म। लिस्टिंग फॉर्म भी इन्हूं कह सकते हैं। अगे है अपने कोल सैट बिल्डर मैथड। तो सैट बिल्डर मैथड किहड़ा होएगा? इन दिस मैथड अ सैट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। मीनस इस विच आपां नूं की दिता होएगा, सैट दी विशेषता करैक्टरिस्टिक दसी होएगी, मीनस विशेषता दसी होएगी। फॉर एग्जांपल मान लो आपां नूं दिता होया है सैट, जिवें कि सैट गिवन है A इज इक्वल टू X सच दैट X इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इहदे विच की है, हुण आपां नूं सीधा सीधा सैट नहीं उन्हां ने दिता, आपां नूं की उहदी करैक्टरिस्टिक दस दित्ती गई है, उसकी विशेषता दस दित्ती गई है। हुण उन्हां ने विशेषता की दसी है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। n की करता है, इंटीजर नूं बिलोंग करता है। तो इसका हुण सैट की बनेगा? तो इस तो हुण आपां इस नूं सैट बना सकते हाँ। तो उन्होंने कहा n इंटीजर है, तो जो n आप 0 पुट करांगे अपने को आ जाएगा 0, 1 पुट करांगे 2, 4, 6, 8 इवें पुट करते जावांगे। इंटीजर तो उन्होंने क्या है, इवें ही इधर की आ जाएगा -2, -4 अप टू चलता जाएगा। तो ये अपना की बन जाएगा, सैट बन जाएगा। तो ये वाली अपनी फॉर्म केड़ी है, ये वाली तो अपनी होगी सैट बिल्डर फॉर्म। सैट बिल्डर फॉर्म। तो जो आपां कोई सैट नूं करली ब्रैकेट्स विच कोमास विच लिखांगे एलीमेंट्स नूं, वो अपनी केड़ी हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। उस नूं आपां की कह सकते हाँ, रोस्टर फॉर्म कह सकते हाँ। तो नैक्सट टॉपिक वाल मूव करते हाँ। एग्जाम्पल भी मैं दित्तियां हन। सैट बिल्डर मैथड नूं की कहा जाता है, रूल मैथड भी कहा जा सकता है। इवें तुहानूं दस्सिया है रोस्टर मैथड नूं लिस्टिंग मैथड भी कह सकते हाँ। तो अलग अलग इन्हां दियां मैं जो दिता गया है आपां नूं, जिवें कि फस्ट विच दिता गया x such that x is a letter of the word पैसिफिक। तो हुण आपां नूं इत्थे सैट विच C 2 बार आया,
बट जो आप सैट लिखांगे तो सैट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की है, वैल डिफाइंड एंड सारे डिस्टिंक्ट एलीमेंट होने चाहिए ने, सारे एलीमेंट्स जो हैं वो ਵੱਖ-ਵੱਖ होने चाहिए हैं। इस करके इस विच आपां सी नूं एक बार ही लगावांगे तो ये अपनी किहड़ी होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। ये अपनी किहड़ी होगी, स्पैसिफिक, जिन्हों की कहे सैट बिल्डर फॉर्म, सैट बिल्डर मैथड या रूल मैथड ये अपना हो गया, जिस विच आपां नूं एक खास करैक्टरिस्टिक सैट दी होएगी, उस नूं आपां नूं पेपर विच कह सकते हैं इस दी रोस्टर फॉर्म किहड़ी है, या फिर रोस्टर फॉर्म पेपर विच दित्ती हो सकती है तो उसकी सैट बिल्डर फॉर्म आपां नूं पुछ सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैं दी है, क्वेश्चन राइट सैट 1 5 15 25 अप टू चलता गया इन सैट बिल्डर फॉर्म। तो ए ऑप्शन है एक्स सच दैट either x equal to 1 or x equal to 5n where n is a real number। अगे है x such that either x equal to 1 x equal to 5n where n is a integer। थर्ड है अपने को x is either x equal to 1 or x equal to 5n where n is an odd natural number। तो फोर्थ अपने को है x equal to 5n। तो हुण इस विच देखो पहला आप फोर्थ ऑप्शन तो चकते हैं, अपने को दिता हुआ है x सच दैट x इक्वल टू 5n वेयर n इज अ नैचुरल नंबर। तो हुण इस विच जदों आप नैचुरल नंबर पुट करांगे तो अपने को सैट किहड़ा बन जाएगा, डी ऑप्शन आप चैक कर रहे हैं पहला। ये अपने को n जो नैचुरल नंबर पुट करांगे अपने को बन जाएगा 5 10 15 20 25, इस तरह 5 तो 5 का डिफरेंस। तो हुण अपन जो दिता हुआ है सैट ये तो उस नाल मैच नहीं कर रहा, था ये अपनी ऑप्शन कट हो गई। सी ऑप्शन अपने को है, सी तो पहले आप बी चैक करते हैं एक्स सच दैट आइदर एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 5n वेयर n इज अ इंटीजर। तो हुण एक्स जो इंटीजर पुट करते हैं तो बी जो अपने को बी ऑप्शन है इसका सैट की बन जाएगा, इसका सैट अपने को बनेगा एक तो 1 में लवांगे, फिर अपने को आ गया 5 10, बट इंटीजर क्या है तो सॉरी जेकर उन्होंने इंटीजर क्या है तो आप नैगेटिव भी लवांगे तो अपने को की बन जाएगा -5 -10, ये भी माइनस वाले भी आ जाएंगे तो ये भी अपनी ऑप्शन की होगी रोंग। अगे उन्होंने कहा रियल, तो रियल में तो इस तो भी बाद आ जाएंगे तो ये भी अपनी जो है ए ऑप्शन भी रोंग होगी। तो इसका राइट आंसर की हो गया सी। हुण सी राइट किवें होया देखो, हुण आपां सी ऑप्शन में एक तो उन्होंने कहा एन ओड नैचुरल नंबर, जदों एन ओड नैचुरल नंबर लवांगे तो आप की सैट अपने को की बनेगा, फॉर एग्जाम्पल ये ही लै लें तो सैट की बनेगी एक तो 1 उन्होंने दिता ही होया, ओड लवांगे तो ओड का मतलब की होया एक तो 1 आ गया 5, एन जो 2 तो लैना नहीं 3 लवांगे ये बन जाएगा 15 25 अप टू चलता है। तो इस करके सी ऑप्शन अपनी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप तुहानू क्लीयर हो गया होगा। जिसने भी चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल सबसक्राइब जरूर करियो ਅਤੇ वीडियो ने शेयर जरूर करियो अपने फ्रेंड्स के नाल। नैक्सट मूव करते हैं, नैक्सट है अपने को टाइप्स ऑफ सैट, सैट दिया किस्म। टाइप्स ऑफ सैट, फर्स्ट है अपने को एम्प्टी सैट। A set is said to be empty or null or void set if it has no element and it is denoted by, इसनूं जां तां फाइनल डिनोटेड कर सकते हैं या फिर खाली करली ब्रैकेट नाल डिनोट कर सकते हैं। हुण नाम तो क्लीयर एम्प्टी सैट किहड़ा होएगा जिस विच कोई भी एलीमेंट नहीं होएगा, कोई भी एलीमेंट नहीं है मतलब वो सैट की है फाई या फिर उसनूं एम्प्टी करली ब्रैकेट्स विच डिनोट कर सकते हाँ। नैक्सट है अपने को सैकेंड टाइप सिंगलटन सैट।
A set containing exactly one element is called a singleton set. For example, A is equal to 1, तो ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ एलिमेंट है, तो ये अपना केड़ा हो गया सिंगलटन सेट, मतलब जिस ਵਿੱਚ एक एलिमेंट होएगा। नेक्स्ट है finite set. A set is called a finite set if it is either void set or its element can be listed by natural number 1 2 3 up to so on। इनका कहने का मतलब की है, हुण एग्जाम में आ सकता है, इंपोर्टेंट है पॉइंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं वॉइड सैट एम्प्टी सैट है या नहीं, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, वॉइड तो खाली हो गया, की जवाब दईए, तो वॉइड सैट अपना की होएगा, अपना फाइनाइट सेट होएगा। एम्प्टी तो होएगा ही होएगा, वॉइड अपना केड़ा होएगा फाइनाइट सेट, वॉइड नू फाइनाइट सेट ही कहांगे। सैकेंड अपन की कह रहे हैं, और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय नैचुरल नंबर, नैचुरल नंबर नाल मतलब मैपिंग की जाए, या फिर उन्होंने जिवें हिसाब ला लो गिनती ही तरह समझ लो, जिवें अपन वोवल ही एग्जाम्पल लेंदे हाँ AEIOU, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਲਿਸਟਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4 5, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਫਿਨਾਈਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਨਾਈਟ ਸੈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਸੈਟ। A set which is not a finite set is called an infinite set. Example, natural number, integer, the set of integer। ਹੁਣ natural number ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7, ਇਹ ਤਾਂ ਅਪ ਟੂ ਚਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਸੈੱਟ। ਇੱਕ ਟਾਈਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਤੇ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਸੈੱਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਤੇ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨੂੰ ਫਿਨਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ। ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਅਤੇ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਜੋ ਹਨ ਫਿਨਾਈਟ ਅਤੇ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਸੈਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट है अपने को इक्विवेलेंट सेट। टू सेट A and B are said to be equivalent if they have the same cardinality, that is n of A equal to n of B। कार्डिनैलिटी का मतलब की होया, तो दस दिन का कार्डिनैलिटी का मतलब की है, मतलब जेकर अपने को एक A सैट है 1 2 3 4 5 6 8 9, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਲੀਮੈਂਟ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ 8 ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਸੈਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ n of A, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ n of A ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 8। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸੈਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ n of A equal to n of B। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ A ਅਤੇ B ਸੈਟ ਹਨ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ A ਸੈਟ ਹੈ 1 2 3, ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਸੈਟ ਹੈ AEI, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, कार्डिनैलिटी सेम आ गई। इनका मतलब ये दोनों केड़े सैट हैं, ये दोनों हैं इक्विवेलेंट सैट, ये दोनों अपने केड़े आ गए इक्विवेलेंट सैट आ गए। इक्विवेलेंट सैट दे विच ये जरूरी नहीं कि वो दोवें सैट सेम ही होण, मतलब सेम एलीमेंट होण, ये नहीं हैगा भी जेकर इक्विवेलेंट तां ही होणगे जे विच 1 2 3 हैगा, तां अपने कोल B विच भी
1 2 3 ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है उन्हां विच एलीमेंट सेम होने चाहिए हैं, मतलब उन्हां दी कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए है। एग्जाम्पल मैं तुहानूं अगे ही दे चुकिया हाँ, 1 2 लै लेंदे हाँ, ए भी लै लेंदे हाँ। हुण इत्थे एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी आ गया, इहदा मतलब ए ते बी की हैं, कार्डिनैलिटी दोनों की दो एलीमेंट दो कार्डिनैलिटी है, तो अपने किहड़े सैट आ गए, इक्विवेलेंट सैट आ गया। नैक्सट अपने को इक्वल सैट, if two sets are the subset of each other they are said to be equal, this is represented by a equal to b, या फिर a subset b and b subset a, if and only if a equal to b। हुण इहदा मतलब की है, इक्वल सैट तो उही सैट होणगे जिन्हां दी कार्डिनैलिटी तो सेम होनी ही होनी है एग्जैक्टली, आपे कार्डिनैलिटी तो उन्हां दी अपने आप ही सेम होएगी क्योंकि दोनों ही एक दूजे दे की हैं सबसैट। फॉर एग्जाम्पल a is equal to 2 4 6, b is equal to 2 4 6। तो हुण इहदे विच देखिए कार्डिनैलिटी दोनों की कितनी है, सेम है 3 3। हुण इहदे विच देखिए तो a सबसैट b दा b सबसैट a दा है, तो ये दोनों की हैं इक्वल हैं। इन्हां दोनों सैट्स नूं की कहांगे आपां, इक्वल सैट, ये हैं अपने इक्वल सैट। नैक्सट मूव करते हैं, नैक्सट है अपने को सबसैट, नैक्सट है सबसैट। set A is said to be a subset of B, set B if all elements of set A are also present in set B, या फिर कह सकते हैं is contained inside set B। for example ये अपने को सेट है B, ये अपने को सेट है A, हुण अपने को सैट ए दिता होया है, अपना सैट बी। तो हुण देखिए जो बी है वो वड्डा है, बी ए दे विच, जो ए है वो बी दे विच ही समाया होया है, तो इत्थे आपां की कहांगे, इत्थे आपां कहांगे ए जो है ए है जो बी दे विच ही समाया है, इत्थे आपां की कहांगे ए जो है सबसैट है बी दा। कहने का मतलब जो ए दे एलीमेंट हैं वो सारे बी विच होणगे ही होणगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी अपने को सैट है 1 2 3 4 6 9 12 कुछ भी है। तो हुण देखिए तो ए वाले सारे सैट जो एलीमेंट बी विच तो है ही ने, तो अपना ए की है सबसैट बी दा होएगा। नैक्सट है अपने को पावर सैट, the set of all subsets of a set A is called power set of A। for example हुण जदों भी आपां नूं कोई सैट दिता होए, जदों भी आपां उस दे पावर सैट दा एक सैट बना दिंदे आ तो वो अपना की हो जाता है, जदों भी उसके सबसैट का एक सैट बना देंगे हाँ तो अपना की आपां उसनूं कहांगे पावर सैट। फॉर एग्जाम्पल जिवें कि मैं एग्जाम्पल दी है, अपने को सैट है ए बी सी, तो हम इस दे सबसैट लईए तो अपने को सबसैट की बनणगे 5 ए बी सी ए बी ए सी बी सी ए बी सी, ये सारे अपने की होणगे इस दे सबसैट। तो जदों भी इन्हां दे सबसैटां दा आपां एक सैट बना दिता तो ये अपना की कहाएगा
ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ P of S, ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ। A set is that a set that contain all sets in the given context is called the universal set। ਹੁਣ ਸੈਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹੀਏ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਸੈੱਟ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਸੈੱਟ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆ A ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ B ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਆ C ਹੋ ਗਿਆ, ਆ D, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ U ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ U ਵੱਡਾ ਹੈ। U ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਾਏਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ A ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ A। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ A ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ A ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ A ਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਆਪਦੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ B ਵਿੱਚ A ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ A ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ B ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ B ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਸੈਟ A ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। B ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, तो अपना की हो गया B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਤੇ B ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B। ਬੋਥ A ਐਂਡ B ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, A ਇੰਟਰਸੈਕਟ B ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਈਦਰ A ਔਰ B, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਕੱਠ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। नेक्स्ट मूव करते हैं कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी ऑफ अ finite set। The number of distinct element in a finite set is called its cardinal number। It is noted as n of A and read as the number of elements of the set। For example, set A is equal to 2 4 5 9 15 has 5 element। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ 5, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਨ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, A equal to 1 2 3 4 5 6 7 10। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ 8। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੀ ਕਾਰਡੀਨੈਲਿਟੀ 8 ਹੋਗੀ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ MCQ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।